बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, we are going to study science grade 6. Today's topic is energy and its forms. आज हम साइंस में एनर्जी और उसकी मुख्तलिफ किस्मों के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए आगाज़ करते हैं. All right, let's dive into something that is, well, literally everywhere and in everything. We're talking about energy. It's the invisible force behind every single thing you do, see, and feel. Honestly, if you understand energy, you kind of understand how the world works. So let's get right to it and start with a simple question. So, I've got a question for you right off the bat. Just think about it for a second. When you lift something heavy, when a car speeds down the road, when your phone screen lights up, what's the one thing they all need to make that happen? What do we call the ability to do work or to make any kind of change? If you said energy, you are spot on. That's the textbook definition right there. But it's so much more than just a word, right? It's the fundamental power that makes anything happen at all. To move, to get warm, to grow, it all runs on energy. Okay, so here's the deal. Even though there are tons of different forms of energy, they all boil down to one of two basic states. This is the key idea, and it's all about potential versus kinetic energy. Let's break that down. So the whole difference really just comes down to this: position versus motion. Is the energy stored up and waiting just based on where something is? That's potential energy. Or is the energy being used right now because something is moving? Well, that's kinetic. Let's look a little closer at potential energy. The best way to think about it is as stored energy. You know, energy that has the potential to do something. It's like a coiled spring or a stretched rubber band. It's just waiting to be released. And this example just illustrates it perfectly. So why does the stone on the roof have more potential energy? Simple, because it's higher up. It has the potential to fall a lot farther, and that potential to cause a change, to make a big thud on the ground, that is its stored energy. And now for the other side of the coin, kinetic energy. Look, if potential energy is the what if, then kinetic energy is the right now. It's the energy of pure movement. Anything that's moving, a rolling ball, a gust of wind, you name it, it has kinetic energy. This one's pretty intuitive, isn't it? An object just sitting there has zero kinetic energy. But the second it starts to move, bam, it's got it. And the faster it moves, or the heavier it is, the more kinetic energy it packs. It is, quite simply, the energy of action. So we have our two main states, right? Potential and kinetic. But this is where it gets really, really cool, because these two states show up in an incredible number of different forms all around us, from the tiniest atom to the biggest star. I mean, just look at this list. It's wild. It's the chemical energy stored in the battery of your phone. It's the heat coming from a radiator. It's the light energy from this very screen, the sound of my voice, even the mind-boggling nuclear energy locked inside an atom. All of these are just different flavors of potential and kinetic energy doing their thing. So, let's bring this all home. From the potential energy of a book on a high shelf to the kinetic energy of a speeding train and all those forms it can take, you start to see it. Energy isn't just some abstract idea. It is, and this is no exaggeration, the engine of your world. And if there's one thing you take away from this, it's this right here. Energy is the universal currency for change. For anything to happen, from a thought flashing in your brain to a planet orbiting the sun, that currency has to be spent. Energy has to convert from one form to another. So to wrap up, I'll just leave you with this question. Take a moment right now and just look around you. Can you spot the different forms of energy at play? The light coming from a lamp, the warmth in the room, maybe the sound from outside. Once you start looking for it, you realize it's absolutely everywhere. Main types of energy. एनर्जी की main types कौन सी है? There are two main types of energy. एनर्जी की बुनियादी तौर पर दो बड़ी इकसाम होती हैं. Number one is potential energy and the other is kinetic energy. यानी एक किस्म है potential energy और दूसरी है kinetic energy. आइए हम इनके बारे में बात करते हैं. Potential energy. It is the energy possessed by a body due to its position. किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सपोज कि हमारे पास ये एक बुक्स हैं, हमने ये टॉप पे रखी हुई हैं, किसी बॉक्स के ऊपर रखी हुई हैं,
तो यहाँ इन बुक्स की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इन बुक्स से जो कि नीचे रखी हुई है। यानी ज्यों ज्यों हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। इसी तरह ये हमारे पास एक ट्री है, एक दरख्त है, इसके ऊपर एक एप्पल है, सेब है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उस सेब की निस्बत जो ज़मीन पे पड़ा है। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी में, किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से होती है, उसकी हरकत की वजह से होती है। It is energy possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से, हरकत की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब उसकी मोशन रुक जाएगी, वो रेस्ट में होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। A moving body has greater kinetic energy than a body at rest. तो किसी बॉडी में उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। तो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर। बहुत सी एनर्जी की किस्में हैं, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन, आम जो फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले है हीट एनर्जी, फिर है लाइट एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। यही नहीं है, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन ये चंद ऐसी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जो आमतौर पे मौजूद होती हैं, जिनसे हमारा रोज़ाना वास्ता पड़ता है। आइए हम इनके बारे में मुख्तसरन जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी वो होती है जो गर्मी की वजह से, आग की वजह से, हरारत की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। किसी जिस्म के अंदर, किसी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी हरकत की वजह से उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है। ये ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। तो स्टूडेंट्स, दूसरी है लाइट एनर्जी, जिसे रोशनी की एनर्जी कहते हैं। रोशनी खुद एक एनर्जी है। जहाँ कहीं रोशनी होगी वहाँ एनर्जी होगी। एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट भी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लुमिनस बॉडी, एक चमकने वाला, एक जलने वाला, एक खुद रोशनी देने वाला जो जिस्म है, उसे उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लाइट एनर्जी है। सूरज सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी का सोर्स है हमारी ज़मीन के लिए। और ये लाइट एनर्जी जब हमारी सोलर प्लेट्स के ऊपर पड़ती है तो सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब हमारे उस केबल से होते हुए हमारे कन्वर्टर में आते हैं और वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। इसी तरह डैम के अंदर जो बिजली पैदा होती है, वही बिजली जब आगे आती है और वो जब हमारे बल्ब वगैरह में से वो गुजरती है तो वो लाइट एनर्जी बन जाती है। तो लाइट एनर्जी वो होती है जो लाइट की वजह से होती है, यानी लाइट खुद एक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, साउंड एनर्जी, आवाज़ की एनर्जी। मेरी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, हवाई जहाज़ की आवाज़ हम सुन रहे होते हैं, किसी तोप या किसी गोले की आवाज़। तो साउंड भी एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। ये कैसे पैदा होती है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जब कोई बॉडी थरथराती है, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो साउंड की शक्ल में हमें सुनाई देती है। तो साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इससे हम वाकिफ हैं। बिजली जो है वो भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चलता है या इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, बिजली जिसे कहते हैं। और ये हमारे बहुत से काम करती है। जियोथर्मल एनर्जी, आप देख रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी यानी ज़मीन हमारी अंदर से गर्म है और बाज़ जगहों पे ये गर्मी और उसके साथ उसकी वजह से ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी मौजूद होती है। इसे जियो यानी ज़मीन, थर्मल कहते हैं हरारत को। जियोथर्मल एनर्जी भी एक एनर्जी की किस्म है। इट इज़ पोजेस्ड बाय अर्थ ड्यू टू द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के अंदरूनी टेम्परेचर की वजह से
ये एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी हर मटेरियल के अंदर मौजूद होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन से ये पैदा होती है। ये जो बैटरी है ये केमिकल एनर्जी की वजह से हमें बिजली फ्राहम करती है, करंट फ्राहम करती है। और इसी तरह गैस है, पेट्रोल है, ये भी केमिकल एनर्जीज हैं। जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में जाती है और बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यानी जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से, उनके केमिकल बॉन्ड्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी वजह से एक केमिकल एनर्जी हर मटेरियल के अंदर मौजूद होती है। बैटरी उसकी मिसाल है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एनर्जी की छठी किस्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस को कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है। इट इज़ पोजेस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है, इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और इसे एटॉमिक एनर्जी भी कह सकते हैं जो एटम के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटी ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इस एनर्जीज की वजह से जो किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनर्जी। ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी है चूँकि वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी की वजह से होती है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी वो होती है जो ग्रेविटी की वजह से होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं जैसे रबर बैंड है या किसी स्प्रिंग वगैरह को दबाते हैं और प्रेशर डालते हैं तो इससे जो उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये गोलेल है, ये रबर बैंड है, या आपका जो वाल पॉइंट है उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है, जब हम उसे दबाते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो किसी चीज़ की जो प्रेशर हम उसके ऊपर डालते हैं या उसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और फिर अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की। इससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैग्नेट जो है वो भी, उनके अंदर भी एनर्जी होती है। वो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ या रिपेल करते हैं। तो ये एनर्जी जो होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहले हमने कहा कि एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क होती है। उसमें सबसे पहले फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ी है। बेसिकली तो दो मेजर टाइप्स होती हैं एनर्जी की। नंबर वन पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है। नंबर टू काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। नंबर थ्री हीट एनर्जी जो कि पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होती है। लाइट एनर्जी जो रोशनी की वजह से होती है। साउंड एनर्जी जो आवाज़ की एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बिजली की वजह से होती है, बिजली की एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जो कि हरकत की वजह से या पोजीशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जीज है। केमिकल एनर्जीज वो एनर्जीज होती हैं या केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी के अंदर उसके केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होती है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो एटम में के न्यूक्लियस में होती है और बहुत ज़्यादा ये एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो ज़मीन की कशिश की वजह से होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी चीज़ को जब दबाते हैं, खींचते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मैग्नेट में होती है, मुकनातीस की वजह से होती है। और फिर जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ज़मीन अंदर से गर्म है, उस गर्मी की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एनर्जी और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और इस लेसन में आपने दिलचस्पी ली होगी। और ये एनर्जी बहुत ही अहम है। पूरी कायनात का निज़ाम, हर चीज़ का निज़ाम इस एनर्जी पर डिपेंड करता है। हमें एनर्जी को
बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आज के सबक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगले सबक तक फ़ी अमानिल्लाह। तो स्टूडेंट्स, ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल, जिसका मकसद सिर्फ तालीम देना है, तालीम सब तक पहुंचाना है, म्यारी तालीम सब तक पहुंचानी है, ताकि हमारे जो मुल्क है उसे जहालत का खात्मा हो सके। ये जहालत के खिलाफ एक जहाद है। ये सादा अंदाज में ये सबक तैयार किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनमें दिलचस्पी ले रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि इल्म का ये सफ़र जारी और सारी रहे। एक दफ़ा फिर अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।